असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. Welcome to Lecture 2, Part 2 of Electromagnetic Induction, in which we are going to study the remaining topic, that is eddy currents or Foucault currents. Now let us come to the new topic, that is eddy currents or Foucault currents. What are eddy currents? The word eddy means kind of swirls or eddies that you might have seen wash basin sinks, which is filled with water, and then water is suddenly allowed to escape, and these swirls or these rotating motion of water can be seen. It can be seen in the washing machines also. So these are also called as swirls, eddies, or whirlpools. So what are these eddy currents? How they are related to this motion of water? Let's see. And the name Foucault comes from the name of the inventor. Now what is eddy currents? Let's see with the help of an activity. You can see that there is a copper plate which is suspended from a wire, and then it is released to execute SHM. And you can see that this copper plate is undergoing SHM. It is showing oscillatory motion. But if the same copper plate, which is suspended from some above point, is allowed to show oscillatory motion between the magnetic poles or in the magnetic field, what we will see, let's see. Now you can see that the copper plate is showing its motion again, oscillatory motion, but this time it is showing it with less frequency or slowly. So why the copper plate, which is not between the magnetic field, is executing SHM at faster rate, but the same copper plate which is in the magnetic field is showing the SHM or oscillatory motion at the slower rate? This is because of the formation of induced current. This is because of the formation of induced current. जब ये कॉपर की प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेटरी मोशन दिखाती है, तो इस कॉपर प्लेट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बार बार चेंज होता है, और जिसकी वजह से जो ये डॉटेड आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और एलिप्स जैसा दिखाए गए हैं, इस तरीके का इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट फॉर्म होता है, और वो इंड्यूस्ड करंट एडीज जैसा होता है. जैसे वाटर में एडीज बनते हैं, स्वर्ल्स बनते हैं या वर्लपूल्स बनते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इंड्यूस्ड करंट इज कॉल्ड eddy currents. Now let's see one more activity to understand the concept of eddy currents and their formation. You can see that there is a metallic block, cylindrical block, over which a wire is wound. This is a kind of solenoid or electromagnet. But now the current is at right time. But right now, no current is flowing through this loop. When we make this switch on, we'll see that this aluminum disc which was placed on this electromagnet falls the moment the current start flowing through this electromagnet. So why is this so? The moment the current flows through the windings or through the copper turns or through the wire turns,
the magnetic field gets set up in this electromagnet, and let's say the moment the magnetic field set up in the electromagnet, the magnetic flux of this aluminum disc quickly changes, and because of this sudden change in the magnetic flux, an induced current gets set up in the aluminum disc, and because of Lenz's law, this induced current will set up in the direction in which it can minimize the cause of its production. लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर इंड्यूस करंट, या जिसको अब हम एडी करंट्स बोल रहे हैं, बनेगा, और वो एडी करंट, वो इंड्यूस करंट अपने ही बनने के कारण को अपोज करेगा। उसके बनने का कारण ये था कि जब एल्यूमिनियम डिस्क इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे रखी हुई थी और जैसे हमने करंट को ऑन किया था तो मैग्नेटिक फील्ड सडनली यहाँ पे अपीयर हुई, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आए हुए उस सडन चेंज को वो अपोज करने के लिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से सडनली अवे हो गया। सो इसीलिए उसमें करंट उसके लोअर फेज पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुआ, सो दैट दिस विल बिकम like north pole, and the north pole will repel with north pole. So now let us come to the definition of eddy currents. Eddy currents are the induced circulating or looping currents produced in a solid metal. This solid metal, whether it is aluminum disc or whether it is a copper plate, due to change in magnetic field or magnetic flux in a metal. तो एडी करंट्स वो इंड्यूस करंट ही होते हैं जिन्हें हम सर्कुलेटिंग फॉर्म में देखते हैं, एडीज की फॉर्म में देखते हैं या लूपिंग की फॉर्म में देखते हैं, जो किसी सॉलिड मेटल के अंदर उसके थ्रू क्रॉस करने वाले मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से जो बनते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स कहते हैं। अब एडी करंट्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। एडी करंट्स किसी भी करंट्स की तरह हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। एडी करंट्स कॉज हीटिंग इफेक्ट एंड समटाइम्स so much of heating effect that the conductor becomes red hot, and the next effect they show is the damping effect. Eddy currents cause damping effect in the conductors in motion in magnetic field. जो कंडक्टर अभी आपने देखा कि ये जो कॉपर की प्लेट जब मैग्नेटिक फील्ड में थी तो उसका मोशन स्लो डाउन हो रहा था एज कंपेयर टू जब वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं थी, और ये जल्दी स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि एडी करंट्स भी इंड्यूस करंट्स ही होते हैं, और इंड्यूस करंट्स अपने ही बनने के कारण को अपोज करते हैं। इसलिए एडी करंट्स कॉज डैम्पिंग इफेक्ट इन द कंडक्टर्स, मींस दे विल स्लो डाउन एंड फाइनली ट्राइज टू स्टॉप द मोशन ऑफ द कंडक्टर। वो कंडक्टर के मोशन को स्टॉप करेंगे बिकॉज दे आर इंड्यूस करंट, दे विल फॉलो लेंज लॉ एंड दे विल ट्राई टू अपोज द कॉज ऑफ देयर ओन प्रोडक्शन। उनके बनने का कारण माइट बी उसी सिचुएशन में कि मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए वो उसको अपोज करते हैं। नाउ हमें कई बार ये इफेक्ट्स कम करने पड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए उस सिचुएशन में यूजफुल नहीं होंगे। कई बार हमें ये इफेक्ट्स चाहिए होते हैं और कई बार हमें ये इफेक्ट्स नहीं चाहिए होते हैं। तो उनको कम करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आप अगेन ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक कॉपर की प्लेट को इसके बीच में ऑसिलेटरी मोशन करते हुए देख रहे होंगे, तो जब ये कॉपर की प्लेट ऑसिलेटरी मोशन को शो करेगी तो इसका मोशन ऑब्वियसली जब यहां मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो उसके कंपैरिजन में जल्दी स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन इसका अगर आपको स्लो डाउन थोड़ा धीरे करवाना है, मतलब उसके डैम्पिंग इफेक्ट को स्लो डाउन करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉपर की प्लेट को कॉम शेप्ड बना सकते हैं, या आप इसको आप कह सकते हैं कि बीच में से कट कर सकते हैं। कट करने से क्या होगा कि वो जो एडी करंट्स का पाथ होता है वो इसमें कट डाउन हो जाएगा एंड द एडी करंट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ एडी करंट्स विल फ्लो। तो अगर हम एक मेटल की पूरी सॉलिड प्लेट को कट कर दें, और इसे हम कहते हैं लेमिनेटिंग द मेटालिक ऑब्जेक्ट, तो उसको हम जब लैमिनेट कर देते हैं, उसको पीसेस में कट कर देते हैं और करंट्स को एक दूसरे में फ्लो ना करवाते हुए स्मॉल पार्ट्स में ही करंट को अलाउ करते हैं एडी करंट को फ्लो करना, तो हम कहते हैं कि उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली वी आर ब्रेकिंग द पाथ ऑफ एडी करंट्स।
Now you can see this is the soft iron core which is used in transformer. In next chapter we are going to study the working and the concept of transformer. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा solid metallic कोर ना लेकर इसको प्लेट्स में स्लाइस डाउन किया हुआ है, कट किया हुआ है, और फिर इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल को इंसर्ट करके फिर इनको आपस में ज्वाइन किया जाता है. तो बेसिकली इससे बेनिफिट ये होगा कि जो आपके एडी करंट्स के पाथ हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और उसकी वजह से जो इसके अंदर इंड्यूस करंट या एडी करंट की वजह से एनर्जी लॉस होती होगी वो कम हो जाएगी. सो एडी करंट्स आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेशंस ऑफ मेटल to make a metal core. The laminations are separated by insulating material like lacquer. The plane of the laminations must be arranged parallel to the magnetic field so that they cut across the eddy current paths. This arrangement reduces the strength of eddy currents. Since the dissipation of electrical energy into heat depends upon the square of the strength of the electric current, heat loss is substantially reduced. We all have studied that according to Joule's law of heating, H is equal to I square RT, की हीट जो लॉस होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अगर हम करंट के ही पार्ट्स को ब्रेक करके करंट के मैग्नीट्यूड को कम कर देंगे एडी करंट्स को, तो हमारे पास जो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी वो कम होगी. नाउ let us come to the applications of eddy currents. Eddy currents have various applications. First, in the induction furnace, eddy currents are used to melt iron ore or different ores. अगर हम मेटल्स को मेल्ट करना चाहते हैं तो हम एडी करंट्स का जो हीटिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो इंडक्शन फर्नेस में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इन स्पीडोमीटर. इन स्पीडोमीटर ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट्स आर यूज्ड. उसमें होता यह है कि एक मैग्नेट को व्हील के एक्सल से जोड़ा जाता है और व्हील जितना तेजी से अपना आरपीएम जो उसका रोटेट पर मिनट जितना ज़्यादा होगा तो मैग्नेट भी उतना जल्दी जल्दी रोटेट करेगा और उसकी वजह से वो मैग्नेट जिस सर्कुलर या सिलेंडर में पड़ी होगी तो उसकी वजह से उसके अंदर एक इंड्यूस करंट बनेगा और वो इंड्यूस करंट को ही स्पीडोमीटर कैलकुलेट करके स्पीड ऑफ द व्हीकल को कैलकुलेट करता है. नेक्स्ट इज इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो करंट को मेजर करते हैं तो वो काफ़ी देर तक ऑसिलेटरी मोशन को शो करते रहते हैं जिसकी वजह से करंट की रीडिंग को लेने में डिफ़िकल्टी आती है. तो अगर हम उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा दें जिसकी वजह से उसके अंदर एडी करंट्स फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से होगा ये कि जो कॉइल है जो हमें एक कांस्टेंट रीडिंग नहीं दे रही थी बिकॉज ऑफ इट्स ऑसिलेशन, उसके ऑसिलेशंस क्विकली सेटल डाउन हो जाएंगे बिकॉज एडी करंट्स विल डैम्प इट्स मोशन एंड देयरफॉर विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक ब्रेक्स ऑफ ट्रेन. जो ट्रेन्स में एडी करंट्स इलेक्ट्रिक ब्रेक्स को की तरह काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे ही ट्रेन को स्टॉप करना होता है तो ट्रेन के जो बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, उनको ऑन कर दिया जाता है जिसकी वजह से एडी करंट्स बनते हैं और एडी करंट्स ट्रेन के मोशन को स्मूथली स्टॉप करते हैं. इन एनर्जी मीटर्स, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स होते हैं, उसमें भी एडी करंट्स हमने मंथ में या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं. इन डायाथर्मी, बिकॉज एडी करंट्स हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो लोकलाइज हीटिंग ऑफ टिश्यूज को हीट के मेथड से क्योर और ट्रीट करने के काम आते हैं. सो इस लेक्चर में हम यहाँ तक करेंगे. अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस, in this lecture we will discuss up to this topic of eddy currents and its applications. In next lecture we will come with new topic that is self induction and mutual induction. Till then keep learning and practicing.